अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.gradekashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस आलमी ख़बर से। जी हाँ नाज़रीन, रूसी फ़ौजियों की जानिब से यूक्रेन पर वसी पैमाने पर हमले के से हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं। याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आलमी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए दीगर ममालिक को ख़बरदार किया कि वो मुदाखलत ना करें। उन्होंने यह तक कह डाला कि अगर कोई मुल्क ऐसा करेगा तो उसके बुरे नताइज सामने आएंगे। उधर यूक्रेन में आज भी बमबारी की वजह से खौफ व खिरास का माहौल रहा। यूक्रेन के सदर के मुताबिक आलमी बरादरी ने उन्हें रूस से लड़ने के लिए तनख्वाह छोड़ दिया है। नाज़रीन, अगर ये मामलात यूं ही चलते रहे तो आलमी माहिरीन ने इसके दूरस नताइज बरामद होने का अंदिया दिया है, जो बेशतर ममालिक को असरअंदाज करेगा। उधर रूस के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में जंग के खौफ से अपने आबाई ममालिक को वापस जाने के ख्वाहिशमंद तलबात के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जहां यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा खौफ व खिरास में अपने शब रोज़ काट रहे हैं, तो वहीं वादी में उनके अहल खाना भी उनकी सलामती को लेकर फ़िक्रमंद हैं। दानिश रसूल, जो तिब की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, कि अहल खाना ने हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से मांग की कि उनके बच्चों को सही सलामत घर लाया जाए। صبح اگر تمس ختم رشن برونٹ کن صبح نہ بہت اصل سہ دان محسوسے سہ دپان تھی روزو اصل کیا روزو اصل مودمت یہ اچھا دہ کن تو نہ رات کن اچھا تیت ٹھیل کہین تہ مے یہ اڈلیک بوے امس رپیس 60 لچھ لگمت یہ تیت اڈلیک یہ اہس دتون سہ أنِتھ میون خداے کر رٲچھ تُہۍ گٔیوا کٲنٛسہِ تۄہہِ کریوا کٲنٛسہِ مول چھس گژھان أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س پریشانی سٲری دَہ دۄہ چھِ أسۍ پریشان۔ یہ وہ اس وقت یوکرین میں ہے، یوکرین اڑیسا میں ہے اور وہ MBBS وہاں پہ کر رہا ہے۔ کل شام ہم نے اس سے بات کی اور آج ہم ٹرائی کر رہے تھے، آج وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، وہاں پہ آج بات نہیں ہو رہی تھی ان سے۔ نہیں وہاں وہ تو انہوں نے تو پیکنگ کر کے بھی رکھے، وہ کہتے تھے ہمارے کو ایمبیسی سے آئے تو کوئی تو ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ کشمیر کے یہ جو جس کالج میں یہ پڑھتے ہیں اس کالج میں یہ 1500 اسٹوڈنٹ کشمیر کے ہیں، وہیں پہ ہیں۔ ٹرائی آج کر رہے تھے لیکن آج انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ سمجھو ہمارا تو جسم ہی ادھر ہے اس وقت خالی۔ اسی دوران اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے یوکرین میں پھنسے جموں کشمیر کے طلباء کو صحیح سلامت گھر لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے امید جتائی کہ بہت جلد وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے تو کل بھی جو فارن منسٹر یہاں کے ہیں ان سے درخواست بھی کی، بات بھی کی۔ مجھے امید ہے اگلے 2-1 دنوں میں وہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے انتظامات کیے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بائی روڈ ٹیمز نکالی گئی ہیں، پولینڈ سے نکالی گئی ہیں، دوسرے بارڈر ایریا جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں۔ دعا کریں گے کہ سب لوگ سلامت رہیں، ہمارے بچے بھی اور وہاں کے لوگ بھی سلامت رہیں، کیوں لوگ تو لوگ ہی ہیں، انسان تو انسان ہی ہے۔ ناظرین، حد بندی کمیشن کو مزید 2 ماہ کی توسیع دیے جانے کو خوشائند بتاتے ہوئے اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے کہا کہ یہ قدم تبھی خوشائند مانا جائے گا جب یہ لوگوں کے حق میں ہوگا۔ اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا ایکسٹینشن اس لیے ملا ہے کہ وہ لوگوں کے جو صحیح لوگوں میں جا کے اصل جو لوگ چاہتے ہیں اس حساب سے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ورنہ وہی کرنا ہے، انہوں نے اس کمرے میں بیٹھ کے ہی فائنل کرنا ہے تو پھر جموں کشمیر کی آڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ ڈیلیمیٹیشن رپورٹ آگے چلے گی 2 دن۔ دیکھیے ویڈیو کیا بات ہے، یہ پرانا زمانہ ہے ویڈیوؤں کا، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ نہیں مطلب آپ کو دیکھیے اس میں تو چھاپ ہی ہے کہ وہ بی جے پی نے بنوایا ہے۔ وہ بول رہے تھے 8 مہینے پہلی آڈیو پرانی اور 4 مہینے رانا صاحب کو جوائن ہوئے ہیں۔ صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس نے کیا کیا، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ وہ بی جے پی نے رپورٹ بنوائی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے امپاورمنٹ کے لیے نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے نیتاؤں کے امپاورمنٹ کے لیے بنائی ہو, لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے امپاورمنٹ کے لیے نہیں. ہماری شکایت تو یہ ہے کہ بھائی صاحب ڈیلیمیٹیشن کو استعمال کریے لوگوں کے امپاورمنٹ کے لیے.
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक कार हादसे में बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक अजीत सिन्हा अपने आबाई शहर गाजीपुर जा रहे थे कि उनकी कार राजघाट पुल के ढलवान पर नस्ब लोहे के सतून से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि कार का एक पहिया भी पंचर हो गया। ताहम मनोज सिन्हा इस वाक़ये में बाल बाल बच गए। याद रहे कि मनोज सिन्हा इन दिनों उत्तर प्रदेश में जारी असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जनूबी ज़िला शोपियां के अमशीपुरा इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजूओं के माबैन तसादुम में लश्कर तोयबा के 2 जंगजूओं के हलाक होने का पुलिस ने दावा किया है, जबकि इस तसादुम में एक आम शहरी के भी हलाक होने की इतलात हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए जंगजूओं की तहवील से असलाह व गोला बारूद और दीगर काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। नाज़रीन, ज़िला किश्तवाड़ के वडवाला इलाके के लापता 6 अफराद आज आखिरकार 3 दिन के बाद सही सलामत घर पहुंच गए। ये 6 अफराद 23 फरवरी को अनंतनाग से बरास्ता मरगन टॉप पैदल घर जाने के दौरान लापता हो गए थे। ज़िला कमिश्नर अनंतनाग के मुताबिक लापता अफराद सही सलामत अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। देखिए, परसों 23 फरवरी को शाम को 7:30 बजे के आसपास एक फ़ेसबुक पोस्ट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि 6 लोग जो वारवन किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और वाया अनंतनाग ऑन फुट वो शायद किसी एरिया से निकलकर वारवन की तरफ जा रहे होंगे और वो मिसिंग हो गए हैं। आप जानते हैं कि लास्ट 3 दिनों से जो वेदर है वो काफ़ी इंक्लीमेंट रहा। इनको ढूंढ पाना, इनका रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग। 24 की मॉर्निंग में एक लोकल रिसोर्सेज के साथ एसडीएम कोकरनाग एंड एसडीपीओ कोकरनाग ट्राई टू डू अ प्रिलिमिनरी रेकी, बट ज़्यादा क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी 8 से 10 फीट की, तो उन तक नहीं पहुंचा जा सका। आज मॉर्निंग में 4:30 बजे विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेवेन्यू टीम्स, आर्मी अथॉरिटीज़, सेक्टर 2 आरआर, CO-19 आरआर, इन सब के एक जॉइंट एफर्ट्स के साथ टीम्स को रवाना किया गया, जिसमें एक 28 पर्सनल्स की टीम बनाई गई और सुबह 4:30 बजे वो मती गावरन से आगे ऑन फुट रेस्क्यू के लिए बढ़े और सुबह से वो ट्रैक करते हुए काफ़ी आधे रास्ते में पहुँचे हैं और एक हमें इमीडिएट 1 बजे के आसपास डीसी किश्तवाड़ से कंफर्मेशन आया है कि उन लोगों को 6 लोग जो मिसिंग थे उनको ट्रैक किया गया है एक हायर एल्टीट्यूड एरिया में और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उन 6 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। नाज़रीन, हिंद पाक ममालिक के माबैन जंगबंदी मुआहदे का आज 1 साल मुकम्मल हुआ। इस मुआहदे की कीमत वही जान सकता है जिसने सरहद पर कशीदगी के दौरान किसी अपने को खोया या फिर इस खोने के एहसास में अपने शब रोज़ काटे। 1 साल कबल जब जम्मू कश्मीर की सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे का ऐलान हुआ तो सरहदी इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली। उड़ी सेक्टर के लोगों का कहना है कि उन्होंने मुद्दत बाद गुज़श्ता साल के दौरान बिना गोली की आवाज़ सुने पुरसुकून नींद की। मैं इसको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, मतलब ये क्योंकि छोटे और बड़ों सब में जो हरासमेंट जो थी, जो खौफ की दहशत जो थी उनके ऊपर, वो ख़त्म हो गई उनसे। और इसको जो है मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ क्योंकि बच्चे जो है निकल कर पहले वो ये सोचते थे कि अभी शायद फायर आ जाएगा और जो है ये पड़ जाएगा, तो मतलब वो घरों से बाहर निकलते नहीं थे या मोर्चों में जो उनके आर्जी मोर्चे थे उनमें या घरों में जो वो बैठे रहते थे, लेकिन स्कूलों में नहीं आया करते थे। तो इसकी बिना पर जो है हमारे जो असतिया कराम जो थे वो भी वहाँ तक असाइनमेंट या जो ऑनलाइन जो क्लास जो थे जो वो भी वो नहीं कर सकते थे। तो उस तरीके से भी या स्कूल जब स्कूल चला करते थे, जब स्कूल फंक्शनल हुआ करते थे, तो उस वक्त भी उनके ऊपर असर पड़ता था। दोनों सूरतों में जो है वो असर पड़ता था। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हम इसको बड़ा क्रेडिट देते हैं कि 1 साल हमारे इस जंगबंदी को हो गए हैं। हम बड़े खुश हैं कि दोनों मुल्कों ने आपस में जो माहिदा किया है इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। हम LOC तक जाते हैं, अपना घास फल फ्रूट जितना भी है वो हासिल करते हैं और शांति से रहते हैं। कोई भी डर वर हमारे दिलों में नहीं है और पुरअमन तरीके से रहते हैं। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क आपस में अगर भाईचारा रखेंगे
तो हम लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजमत और कमिश्नर अतहर आमिर ने आज दरगाह हज़रत बल पर हाज़िरी दी और महराज आलम की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अक़ीदतमंदों के लिए बिला खलल बिजली और पानी की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, तिब्बी सहूलियात और सफाई सुथराई के अलावा सैनिटाइजेशन जैसी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि जीके वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।